Hello students, welcome you all in our 6th lecture. And with this, as we have completed our course from the Behave textbook, now we move towards supplementary reader. Which textbooks you are having? Do you know? You are having the Moments, I think. Okay, Moments is the textbook. It is a supplementary reader. And for standard 9, you have to study all the supplementary chapters from this lesson. As you know, students, before starting this lesson, let me tell what is the meaning of supplementary. Why the government is giving one extra book? Why you have to purchase extra book and spend money for it? There is a reason. Could you? Can any of you tell me why the government is providing one extra supplementary book for you? Why? Because behind the supplementary reading, the government has one aim, that to make or to flourish your skill of reading. That is why it is called supplementary. Means big stories are given in book, and through these stories, we can say moral stories they are giving, and through these moral stories we are able to, we used to just read the stories and try to find out or increase the vocabulary. And if you know that if you increase your vocabulary, automatically your English will improve or your English will improve. Means this is the main aim of the government, providing supplementary readers to you. Now, you have a question in your mind, why the madam is telling like this? Because many of us don't know that why the supplementary books are there. I heard that so many students are speaking like this. अरे यार ये क्या supplementary book दे देते, एक तो पूरी होती नहीं, दूसरे कहाँ से करें? But in many school actually the supplementary book is only for home. The teacher is not used to teach the book in the classrooms. But here I am teaching you. Why? Because if means you know that what the story. Now I am teaching you without book. See, I don't have any textbook. Then also I am teaching you the whole story of the supplementary because I have read it very nicely. I thoroughly understand what the story, what is the moral behind the lesson, and that is why very nicely I explain in front of you. The same way you have to read the textbook or especially the supplementary textbook at home. Try to find out the meanings, try to increase your vocabulary, and then try to write the question answers in your own. There is no, we can say that, need of any digest. Okay, because once you know the story, it is easy for you to write. But many students have the same problem. What the problem they are having? They have the problem that, ma'am, I know all the answer in Hindi, but it is very hard to me that how to translate it into English. So, for the solution of your problem of translation of the English, the supplementary is very useful for you. So, from the today onwards, just whenever you are watching this lecture, you just make the page in your mind that supplementary is the reader is for us, not for the teacher. Because you have to read the stories, understand its moral, increase your vocabulary, and the English translations become easy to for you. Okay. Now, with this, we are starting your first lesson. The name of the supplementary lesson from the book Moments, The Lost Child. Textbook name is Moments, the name of your supplementary reader. First lesson I have taken from Behave. Now, the lost child. Here, students, this is the story of one child that he is a countryside. He is from the countryside, means village side we can say, and he come in the fair. Actually, he goes in the fair with his parents, and he was very busy and we can say that very happy. And curiosity in his mind to purchase the toys and sweets all the vendors are selling in the fair. So whenever he argued with his parents, he requested his parents, please give me that toys as well as give me a round in that merry-go-round in the swing. But his parents are not allowing him. They are in a hurry and they have to reach in the fair. So whatever the child is asking for them or whatever the child is demanding, the parents are not providing him. But whenever someone else is providing the same thing to the child, whichever he was attracted or facilitated, listen, I will repeat. His parents, actually the child
parents are, we can say, not giving the same to him. That is why he is making the argument with his parents, but the parents are avoiding him. They are not providing the things. But whenever someone else is ready to provide all these things to him, then also the child is not ready. The child didn't want that thing. Only he wanted his parents. So this is the story of the lost child. Lost means missing. Okay, this is the story of the missing child, that he was lost in a fair. He was taken away from his parents, and what the situation of the child is, that is we have to see in the story. So students, यहाँ पे मैंने जैसे तुम लोगों को अभी बताया कि एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो फेयर में जाता है। जब फेयर में जाता है तो वो आसपास के टॉयज, फिर आसपास जो भी स्वीट्स होते हैं या जो भी मिठाई, सॉरी ये स्विंग्स होते हैं, सब उसको देखना होता है, एंजॉय करना होता है। बट उसके पेरेंट्स को ये बताता नहीं है कि मुझे वो एंजॉय करने दीजिए, मुझे वो लेके दीजिए ना, पर उसके पेरेंट्स दे आर डिफरेंट, उसको मना करते हैं कि नहीं ये सब नहीं ले रहे, तू चल, कम चाइल्ड कम। ऑलवेज दे आर सेइंग लाइक दिस टू देयर चाइल्ड। उनके बच्चों को ऐसा ही बोलते हैं, चलो बेटा चलो, जल्दी हो रही है, चलो चलो। इसकी वजह से वो जो चाइल्ड है, जो वो चीज़ों से फैसिनेट हुआ है, अट्रैक्टेड हुआ है, वो उसको नहीं मिल रहा। इसीलिए फिर जब कोई दूसरा इंसान वो सारी चीज़ें उसको ले देने के लिए तैयार होता है, बट वो चाइल्ड वो चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसको चाहिए होते हैं तो उसके सिर्फ पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि जब वो बच्चा खो जाता है, जब उसको उसके पेरेंट्स मिलते नहीं हैं, तब उसको कोई और बंदा हमारे जैसा जो भी ह्यूमन बनकर, जो भी काइंडनेस और जनरस पर्सन होगा, वो उसको लाड प्यार करता है, स्वीट्स के लिए पूछता है, टॉयज के लिए पूछता है, उसे पूछता है कि मुझे मेरी गो राउंड में स्विंग्स में बैठना है कि नहीं, राइड्स में, सब पूछता है। तब चाइल्ड एक ही डिमांड करता है, क्या? आई जस्ट वॉन्ट माई पेरेंट्स, वेयर माई फादर एंड मदर। ये वेयर इज माई फादर एंड मदर मीन्स ऐसे क्वेश्चन, उसकी जो माइंड की साइकोलॉजी है कैसे तुरंत चेंज हो जाती है, ये बहुत ही अच्छी तरह से राइटर का नाम है एम राज आनंद, उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। ये बच्चे की साइकोलॉजी ही चेंज हो जाती है। जो बच्चा पहले वो चीज़ों के लिए, जैसे मैंने देखो ये पूरी साइकिल यहाँ पे लिखी हुई है कि स्प्रिंग का सीजन होता है, फिर ये पूरा रास्ते में वो ये सारी चीज़ों से वो जो बच्चा है वो मिलता है। तो हम लोग वन बाय वन उसको भी देखने वाले हैं। तो सी स्टूडेंट्स, it was the festival of spring and that is why the fair organized there. It is a winter season, we can say. At the time of spring there is nearly winter season, so the fair was gathered there at one place, and the child with his parents goes to means is going to the fair, and he see on the way they were just walking and the parents are walking very hurriedly. तो वो जो बच्चा है उसको ऐसे उंगली पकड़ के फटाफट खींच के लेके जा रहे हैं। उसके पापा उसको एक बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, चलो बेटा चलो जल्दी। तो जब वो निकलते हैं घर से, तो उसको रास्ते में सबसे पहले, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है, सो ऑल द फ्लावर्स आर ब्लॉसम ओवर द ट्रीज, ओके, द सीनरी और द सीन इज वेरी नाइस, सब कुछ अच्छा होता है बहुत। वो देख के वो बच्चा एकदम खुश हो जाता है कि कितना ग्रीनरी है, फ्लावर्स ब्लॉसम हुए हैं। फिर उसको देख के वो बच्चा खो जाता है, द चाइल्ड वाज जस्ट वी कैन से दैट, उसके अंदर वो भूल भी जाता है, फिर वो पीछे रह जाता है, ये लोग आगे निकल जाते हैं। तो उनको पता चलता है हमारा बेटा तो पीछे है, उसकी मम्मी उसको फिंगर देती, बेटा मेरे फिंगर को पकड़ के तू चल। तो वो बच्चे का फिंगर, उसने मम्मी का फिंगर पकड़ के रखा है और वो चल रहा है। वो सिर्फ चल रहा है, एक्चुअली जस्ट फिजिकली ही वाज जस्ट वॉकिंग, बट मेंटली एंड हिज आईज आर लुकिंग डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर ऑब्जर्विंग द डिफरेंट प्लेसेस। उनको उसकी आंखें का जो नज़र है, मीन्स उसका जो विजन है, वो सामने रोड पे है ही नहीं। ही वाज जस्ट वॉकिंग विद हिज पेरेंट्स, उसको एक्चुअली लेके जा रहे हैं उसके पेरेंट्स। वो यहाँ देख रहा है, उसने देखा है कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, कितनी ग्रीनरी है, इस तरह से वहाँ पे देखता है और उसकी इच्छा होती है कि अरे वाह कितना मस्त है, वो रोड पे जो सीन है वो कितना मस्त है। जब वो जाता है तो सबसे पहले उसको मिलते हैं फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। याद रखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि narrate in your own words the journey of the child from the context of the lesson the lost child।
तुमको तो लिखना आना चाहिए। सबसे पहले वो किससे मिलता है? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसको मस्टर्ड फील्ड दिखते हैं। येलो फ्लावर्स आर ब्लॉसम ओवर देयर। ओके, these flowers are looking very nicely. The writer compared these flowers with the gold because the flowers blossom whenever the flowers become blossom. Their color is yellow. They are shining in the sun rays, and the writer has compared the flowers with the sunrise or the we can sorry gold. गोल्ड के साथ उसका कंपैरिजन किया है राइटर ने। वो जो बच्चा है उसको वो फ्लावर्स देख के उसको ऐसा लगता है कि मैं दौड़ के जाऊँ और वो फ्लावर्स जो है वो मेरे पास ले लूँ, बट उसके लिए वो पॉसिबल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने पकड़ के उसका हाथ पकड़ के रखा है और बच्चा हिलना नहीं चाहिए और उनको जाने की जल्दी है। उसका माइंड जो है वो सब देखता है। डाउज आर क्वीन, जो डाउज होते हैं वो उड़ रहे थे, वो आवाज कर रहे थे। ऑल द अदर बर्ड्स आर आल्सो फ्लाइंग इन द स्काई, वो सबको देख रहा है। द स्काई इज वेरी क्लियर, स्काई भी बहुत ही क्लियर है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ही मजा आ रहा था। और यहाँ पे उनको एक बात समझ में आई, द चाइल्ड वाज सो स्मॉल लाइक 5 or 6 years old, he was just moving in and out from the between the father's leg, इतना छोटा है, तो जिसकी वजह से वो पहली बार ये सारी चीजें देख रहा है। देखो स्टूडेंट, जब हम लोग किसी भी चीज को पहली बार देखते हैं तो हम लोग को इतना अलग लगता है कि कितना मस्त है, कितना अच्छा है, और वही चीज हम लोग बार बार देखते हैं तो वी आर यूज्ड टू, हम लोग उसके साथ यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें इतना ये नहीं लगता है। पर जब हम लोग वो चीज पहली बार देखते हैं तो वी आर फैसिलिटेड टुवर्ड्स इट, वो है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वो बच्चा जो है वो कहाँ मिलता है? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वहाँ पे मिलता है। उसको देख के उसे ऐसा लगता है वो सो ब्यूटीफुल, सो नाइस द फील्ड इज लुकिंग, द फ्लावर्स आर सो नाइसली विथ येलो कलर, दैट इज व्हाई वो चमक रहे हैं, तो उसको बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। फिर जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि उसकी मम्मी उसको खींच के लेके चला गई, वो जो बच्चा है वो आगे जाता है। जब वो आगे जाता है तो he found the group of the dragonflies. They were just flying over that yellow flowers, forgetting the what they are collecting nectar. You know, in science you already have learned that nectar the dragonflies are collecting from the flowers. Okay, वो group होता है dragonflies का, they are vivid color, उनके कलर अलग अलग होते हैं। तो वो जो देखता है dragonflies को तो उनको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, सबको पीछे वो जा रहा है, मम्मी ने उसका हाथ अभी भी छोड़ा हुआ नहीं, वो ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो इतना हो जाता है, मम्मी भी चलने में बिजी है, वो उसका हाथ छोड़ देती है। फिर वो ड्रैगन फ्लाइज को ऐसे पकड़ता है और जैसे ही वो एक को पकड़ने ही लगता है उतने में उसके पापा का कॉल आता है। कॉल में उसके पापा उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, फिर से उसको छोड़ के चला जाता है। यानी कि सबसे पहले उसने देखा फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसके बाद उसने देखा ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो बहुत ही अच्छी तरह से उसको मजे आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत नीचे से उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे होंगे? बिकॉज द मस्टर्ड फील्ड वाज स्प्रेड देयर, द फ्लावर्स आर ब्लॉसम एंड दैट इज व्हाई द ड्रैगन फ्लाइज केम ओवर देयर फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर। सो वो उसको देखता है, उसका माइंड जो है वो फिर से अट्रैक्शन में आ जाता है, उसके मन में ग्रीड आती है कि मुझे इसको पकड़ना है, क्योंकि छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है, पकड़ने का पहले समझ में आता है। फिर बाद में वो आगे उसके पापा का जैसे ही कॉल आता है तो वो चला जाता है आगे। उसके बाद वो थक जाते हैं क्योंकि वो कब से दे आर ट्रैवलिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाई दे हैव टेकन सम रेस्ट देयर एंड दे सीटेड ऑन द एज ऑफ अ वेल। एक कुआं था वहाँ पे, उसके किनारे पे वो लोग बैठ गए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। जब वो वहाँ पे बैठे तो द वेल वाज कवर्ड विद ट्रीज, स्पेशली द फ्लावरिंग ट्रीज, सो व्हेनेवर दे सीटेड देयर द shower of the flowers came over them, उनके ऊपर ऐसे फूल गिर रहे थे पेड़ से। कितना मजा आएगा, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं बोलो? यस। तो उसने जब देखा कि वो जो फ्लावर्स है वो मस्त ट्री से ऊपर गिर रहे थे लाइक अ शॉवर, द फ्लावर्स आर शॉवरिंग ओवर देम। चाइल्ड को बहुत अच्छा लगा, उसे लगा अरे वाह कितना मजा आ रहा है, ये जो फ्लावर्स है वो कितने मस्त लग रहे हैं। तो उसको वहाँ से उठने की इच्छा हुई ही नहीं, उसने 3-4 ऐसे जितने भी आए उतने हाथ में पकड़े और हाथ में पकड़ ही रहा था। और जैसे ही उसने 4-5 जो भी हाथ में पकड़े होंगे, क्योंकि उसके हाथ ही छोटे छोटे होंगे, जो भी 1-2 फ्लावर्स उसके हाथ में आए तुरंत उसके पापा ने बोला कम चाइल्ड कम। अगेन उसका माइंड डाइवर्ट हो गया बिकॉज ही टोटली लॉस्ट हिज माइंड बिकॉज ही वाज सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट ही वाज ट्रैवलिंग। तो जिसकी वजह से वो जो फ्लावर्स थे उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा, फ्लावर्स गिर गए, वो आगे चला गया, फिर से वो हो गया। फिर बाद में जब वो लोग कहाँ पहुंचे, नाउ दे एक्चुअली रीच इन द वी कैन से फेयर।
अभी वो फेयर में पहुंच गए। Whenever he saw that some people are riding on horse, some are seated there, some are walking. Okay, means सब जगह पे अलग अलग लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। कोई घोड़े पे जा रहा था, कोई बैठे हुए थे, कोई पैदल चल रहे थे, कोई हंसी मजाक कर रहा था। यू नो दैट फेयर के अंदर किस तरह से होता है तुम लोगों को पता है। तो सेम थिंग वाज देयर कि फेयर में किस तरह से हम लोग जाते हैं तो सब लोग एक ही काम नहीं करते, अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो सेम द चाइल्ड वाज ऑब्जर्व देयर, उसने वही देखा। उसके बाद सबसे पहले उसकी नजर गई स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर मीन्स व्हाट, मिठाई वाला जिसको हम लोग बोलते हैं। So whenever he saw that sweet meat seller, he was just hawking, वो ऐसे चिल्ला रहा था कि प्लीज गुलाब जामुन ले लो, फिर जलेबी ले लो, बर्फी ले लो, इस तरह से वो बोल रहा था, जिसको देख के बच्चे के मुंह में पानी आ गया। ओके, the child's mouth watering, and whenever he demanded from his father, please give me that barfi or purchase that barfi for me. But his father refused to do so. उसके फादर ने मना किया कि नहीं, ये हमारी चीजें नहीं है, ऐसे तुझे लालच नहीं आना चाहिए, हमको ये सब खाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। क्योंकि एक्चुअली उसके पापा को वो चीजें लेके ही नहीं देनी होती उसको, इसकी वजह से वो उसको मना करते हैं। अभी उसकी जो नजर है, देखो हमको अगर भूख लगती है और जब हमें ऐसी चीजें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फी ऐसे सामने हो और हमारे पेरेंट्स हम बोले अभी नहीं लेने, तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं, वहीं पे बैठ जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। बट वो बच्चा छोटा था और वो पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ निकला था, इसीलिए उसके पेरेंट्स, उसकी तो इच्छा कितनी होती थी, जैसे तुमने यहाँ से भी देखा होगा कि उसकी कितनी इच्छाएं हुई, उसके पेरेंट्स ने उसकी एक भी विश फुलफिल नहीं की। उसको खींचते खींचते वो लोग मेले में, फेयर में लेके ही गए। और जब फेयर में लेके गए तो पहली नजर उसकी पड़ी लोगों के ऊपर, सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, उसको भी लगा मैं भी करूँ। उसकी नजर सबसे पहले स्वीट मीट सेलर पे गई, क्योंकि भूख लगी थी उसको भी, काफी समय से वो लोग चल रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, देखो वो बच्चा ऐसे पीछे ऐसे देखते 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 गया, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे था, स्वीट मीट सेलर की ओर था। उसे क्या खानी थी, उसको बर्फी। उसने डिमांड की उसके पापा से, तो मुझे आगे ना बर्फी लेके दो, आई वांट टू ईट दैट बर्फी। बट हिज फादर रिफ्यूज्ड टू डू, एंड दैट इज व्हाई ही वाज अगेन डिसअपॉइंटेड। बेचारा दुखी हो गया, चलो आगे, मम्मी पापा कुछ लेके ही नहीं दे रहे। फिर बाद में एक फ्लावर सेलर, फूल बेच रहा था, फूल बेचने वाला, he was selling like that, the garland of the gulmohar, the garland of the gulmohar। उसको देख के उसने वो रेडिश कलर जब देखा गुलमोहर का, उसको लगा सो ब्यूटीफुल, उसने बोला मुझे वो गार्लैंड ही लेके दो। गार्लैंड मीन्स माला। ओके, तो वो जो फ्लावर सेलर है वो बेच रहा था वो माला है कि टेक द गार्लैंड ऑफ द सेलर फॉर 10 रुपीज और 5 रुपीज, व्हाटएवर इट वाज, वो बेच रहा था। चाइल्ड को ऐसा लगा, अरे तुम लोगों ने मुझे खाने का तो लेके नहीं दिया, कम से कम ये फूल की माला तो लेके दो। His father said to him that, no, what is the word to him? What you would do with it? तू इससे क्या करने वाला है? तुझे मैं चल लेके भी दूंगा, पर फ्लावर की माला लेके तू क्या करेगा? शायद वो चाइल्ड को पहननी ही होगी स्टूडेंट्स, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसको मंदिर में चढ़ानी थी, क्योंकि उतनी बुद्धि वो बच्चे की नहीं थी। He was just a small kid of 5 or 6 years old. तो उसने क्या सोचा होगा, just you imagine, as he was demanding the flower seller the garland of the gulmohar, then what we can say, उसने क्या expect किया होगा? He just expected to want that garland himself only, क्योंकि उसको खुद को वो पहननी होगी, भगवान को तो चढ़ाएगा नहीं, क्योंकि उतनी बुद्धि उसकी थी नहीं। तो उसके पेरेंट्स ने उसको वो भी नहीं दिया, बेचारा भी दुखी हो गया। उसको थोड़ी देर के लिए तो पछतावा होगा कि कैसे पेरेंट्स से कुछ नहीं लेके दे रहे, जब से हम लोग घर से निकले तब से सिर्फ चल ही रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो थक भी गया और कंटाल भी गया। उसको ऐसा लग रहा है नाउ आई एम सिक एंड टायर्ड, आई डोंट वांट टू मूव अहेड। उसको आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसकी मम्मी उसका कस के हाथ पकड़ा, वो खींच के उसको लेके जा रही थी, और बच्चे का ध्यान तो है ही नहीं, वो इस तरह से जा रहा था, देखो इससे, और उसकी मम्मी आगे जा रही थी। फिर क्या हुआ, जब वो लोग आगे गए तो बलून सेलर कम ऑन द वे, रास्ते में उनको बलून बेचने वाला मिला। उसके पास रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, येलो, अलग अलग बलून्स थे। अभी बलून्स को देख के बड़े भी इतने अट्रैक्ट हो जाते, वो तो छोटा बच्चा था। जब उसने देखा द बलून्स आर सो ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाई ही आल्सो डिमांडेड द बलून्स फ्रॉम हिज फादर। उसके पापा को उसने बोला तुम मुझे वो बलून लेके दो ना। उसके पापा ने मना किया, नहीं ये हमारे नाम की चीज नहीं, वो तो 1 मिनट में फूट जाएगा, फिर क्या मिलेगा, सारे पैसे बर्बाद। यानी उन्होंने वो बलून भी उसको लेके
यानी देखो, whenever the child demanded means whenever the child not demanded, actually he was happy with seeing the mustard field, then he had seen the dragonflies, then again whenever they had taken the rest near the well, he enjoyed the showering of the flowers, then he moved ahead and he reached finally he reached in the fair, and he saw that he made sweet meat seller, and that seller was we can say that selling gulab jamun, jalebi, then rasgulla and barfi. So the child demanded for the barfi, but his father refused him that this is not a good thing for our health, so don't take. So the child again disappointed, again they moved forward and they found that one flower seller was selling the garland of the gulmohar, and he was just we can say that वो जोर जोर से बोल रहा था the garland of the seller, the garland of the gulmohar, the garland of the gulmohar. Again the child demanded that the garland of the I want that garland of the gulmohar, but again his father refused him and said that in the his father just look at him red eyed यानी गुस्से में देखा, तो वो बच्चा डर गया जिसकी वजह से उसने उसकी डिमांड भी नहीं की। Whenever they move ahead, जब वो आगे गए तो बच्चे ने क्या देखा, balloons देखा। The balloons are with very nice color, red, blue, green, yellow, whatever the colors, the balloon is having. फिर जब उन्होंने वो बच्चे ने वो balloons की डिमांड की, फादर ने उसको बोला नहीं, ये तो अभी फूट जाएगा, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बच्चा बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया, अभी तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी कुछ भी, अभी वो आगे जाने का मना कर रहा था कि आई डोंट वांट टू कम विथ यू, वो यहाँ पे रुक गया। वहीं पे he found that the one snake charmer was playing the show of the snake। उनको पता है snake charmer होता है और वो शो कर रहा होता है किसका, वो snake का। तो he found that the snake was coiled itself in that टोकरी, and snake charmer was playing that flute, and with the movement of the flute the snake was just raised her, we can say that bent its head like that of the swan। यहाँ पे उसके जो snake का head है वो swan के साथ कंपेयर किया, वो ऐसे ऐसे उठते हैं ना, उनको पता है। तो वो वहाँ से उठा, उसने देखा वो snake को, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मस्त खो गया, ऐसे खड़ा हो गया वहाँ। उसके पेरेंट्स भी थोड़ी देर रुक गए, उनको ऐसा कि चलो इसको कुछ भी नहीं लेके दे रहे, ये फ्री में स्नेक चार्मर जो है वो शो दिखा रहा है, तो चलो इसको दिखाते हैं। तो वो वहाँ से जाने का मना ही कर रहा है। ओके, तो बच्चे ने क्या बोला कि मुझे यहाँ पे रुकना है, वो स्नेक चार्मर वाज प्लेइंग और शोइंग वेरी नाइस प्ले, तो उसको देखना था वो स्नेक किस तरह से कॉइल था, किस तरह से उसने उसका हेड रेज किया। ओके, तो वो देखिए उसको बहुत मजा आ रहा। फाइनली उसके पेरेंट्स वहां से उसको लेके गए। फिर क्या हुआ, एक स्विंग मीन्स अपने यहाँ पे बोलेंगे राइड्स। ओके, स्विंग्स मीन्स इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको बोलेंगे राइड्स। उनको होता है फेयर के अंदर राइड्स होता है, मेरी गो राउंड होता है, वो जायंट व्हील होता है, यू नो, एंड ऑल वी आर एंजॉयिंग इन सिटिंग दैट जायंट व्हील एंड मेरी गो राउंड। सबको अच्छा लगता है कि नहीं उसके अंदर बैठना। तो बच्चे ने बोला कि एटलीस्ट आई वांट टू सीट इन द स्विंग। ओके, सो वन टाइम ओनली आप लोग मुझे इसमें बिठाओ एक बार। मैंने आपसे इतनी सारी चीजें मांगी, आपने मुझे लेके नहीं दी, मुझे एक बार इसमें बिठा दो। ऐसे वो बोल ही रहा था, इतने में कुछ गड़बड़ हुई। अभी वो क्या गड़बड़ हुई ये तुम लोगों को गेस करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी जो है वो अपने इंटरनल बेस पे रखते हैं ना, अभी से क्लाइमैक्स स्टार्ट होगा। अब तक जो भी था ये हमने देख लिया, वो यहाँ मिला, ये डिमांड की, वो डिमांड की, उसके पापा ने नहीं लेके दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि जब वो देखता है सारी चीजें मांगी, फिर वो बच्चा जो उसके माँ बाप दे वर वेरी बिजी, एंड जब उसने हाथ छोड़ दिया मम्मी ने उसका, तो बच्चा उसकी ओर देख रहा था और बोल रहा था कि ऐसे कर रहा था, मुझे ये यहाँ पे तो एक बार बिकना ही है। और जब वो टर्न होता है तो उसको कौन दिखता है, वो एक क्लाइमैक्स है जो हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताने वाले हैं। अगर तुमको टाइम मिलेगा, मैं तुमको बोलती हूँ आई एम इनवाइटिंग यू, तुम लोग खुद उसका क्लाइमैक्स पढ़ो और मुझे बताओ। अभी तुम लोग बोलोगे मैम कैसे बताएं, खाली आपकी आवाज थी, हमारी तो आवाज ही नहीं थी। कोई बात नहीं, भले मैं बताऊंगी पर तुम लोग एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना, तुम लोग कोशिश तो कर सकते हो। सो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसका क्लाइमैक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैंने तुम्हें थोड़ी हिंट दे ही दी है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको आगे की स्टोरी जो है वो तुम्हारे लिए मैं छोड़ती हूँ। वैसे तो मैं बता नहीं वाली हूँ, पर उसके बीच में काफी टाइम है, तो तुम लोग ये कर ही सकते हो। ओके, तो हम लोग जब मिलेंगे ना लेक्चर 7th में, तो we are just finding out the climax of the story, that what is the climax, why the writer has named the story the lost child. So with this you come to
ये जो है स्विंग की डिमांड करने के बाद व्हेन इट टर्न बैक क्या हुआ वही हमको देखना है। टिल देन बाय।